Dear students, today's topic is DNA replication. We have come to know about the structure of DNA, in which we came to know that it is a double helical structure, and Watson and Crick had given the model of this DNA. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. So before starting this DNA replication discussion about this DNA replication, let's go through an animation film. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. In animation film, we have seen that how this DNA is replicating. Now let's discuss about DNA replication. And we all know that DNA has two strands. दो strands होते हैं DNA के अंदर और दोनों strands जो है वो एक दूसरे के लिए complementary होते हैं. It is a double helical structure. And DNA replication क्या है? It is simply copying DNA. DNA को copy करना, उसको हम DNA replication कहेंगे. बट हाउ इज डीएनए कॉपीड? डीएनए कॉपी कैसे होता है? जैसे कि आपको बताया था, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों के बीच में जो है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. और ये जो बेस पेयर्स हैं, ये बेस पेयर्स हैं जो सिंगल स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करेंगे.
So the base pairing suggests that it will allow each side to serve as a template for a new strand. तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, पहले ये डबल हेलिकल जो है एक कैंची जैसे हम ओपन करते हैं तो कैसे खुलता है, इसी तरह से रेप्लिकेशन फोर्क की तरह ये ओपन होगा। और जो दोनों स्ट्रैंड्स ब्लू में हैं वो हमारा ओरिजिनल डीएनए का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑरेंज में नया डीएनए नया रेप्लिकेट हो रहा है, तो जो ब्लू है वो टेम्पलेट का काम कर रहे हैं। तो अब डीएनए को जो है कॉपी करने की आवश्यकता कब और क्यों होती है? व्हेन डज अ सेल कॉपी डीएनए? तो सेल जो है कब कॉपी करेगा, यानी डीएनए रेप्लिकेट कब करेगा? जब सेल रिप्रोड्यूस होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, दो नए कोशिकाएं बनती हैं, तो दोनों में डीएनए देना होता है। तो एक डीएनए जो एक कोशिका का होता है वो डुप्लीकेट होगा, डबल होगा, और एक एक डीएनए दोनों को दिया जाता है। इसी तरह से गैमेट प्रोडक्शन के टाइम पे जब मियोटिक डिवीजन होता है टेस्टिस के अंदर और ओवरी के अंदर, जब ओवा और स्पर्म बनते हैं, तो उस दौरान भी जो है डीएनए डुप्लीकेट होगा। सो व्हेनेवर देयर इज नीड ऑफ डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होगा और डीएनए कॉपी किया जाएगा। सो इट एट ईच सेल डिवीजन सेल मस्ट कॉपी इट्स एंटायर डीएनए। जब भी सेल डिवीजन होगा, कोशिका जो है अपना पूरा डीएनए को कॉपी करेगा, और दोनों जो डॉटर सेल्स हैं, जो दो डॉटर कोशिकाएं जो बनती हैं, उनको कंप्लीट कॉपी देगा, यानी दोनों में डीएनए एग्जैक्टली सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी, सेम टाइप। और रेट ऑफ सिंथेसिस जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में बहुत फास्ट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो 1000 बेसेस पर सेकेंड जो है वो रेप्लिकेट होते हैं, और मैमल्स में जो है 100 बेसेस पर सेकेंड। DNA replication is copied by a replication machine that travels along each replication fork. जैसे कोई एक मशीन चल रही है, इसी तरह से आप क्या देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर की तरह काम करेगा, एक कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम जो है डीएनए रेप्लिकेशन में मशीन की तरह ट्रैवल करेगा और पूरा रेप्लिकेशन फोर्क में जो है वो एक डीएनए को कॉपी करेगा और दो डीएनए बन करके तैयार होंगे। इट इज़ एबल टू ऐड डीएनए सब यूनिट्स मेकिंग न्यू डीएनए। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट कैन ऐड डीएनए सब यूनिट्स। नाउ व्हाट आर दिस डीएनए सब यूनिट्स? कौन है ये डीएनए सब यूनिट्स? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो उसको अटैच करने का काम, ऐड करने का काम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के वजह से ही जो है नया डीएनए कॉपी होगा, यानी डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड। Now this DNA polymerase enzyme, it was first discovered in 1956 by Kornberg. Kornberg ने 1956 में सबसे पहले इस DNA polymerase को डिस्कवर किया था बैक्टीरिया के अंदर, और ये 3 प्रकार के हैं, DNA polymerase 1, 2 and 3। रोमन में लिखा जाता है 1, 2 और 3। DNA polymerase 3 जो है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन जो प्रोसेस है वो पूरा डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है, और जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 जो है वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो मुख्य तौर पे जो है डीएनए रेप्लिकेशन का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। इसी तरह से ह्यूमन के अंदर जो है 4 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो न्यूक्लियर डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। वो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसके रेप्लिकेशन में जो हेल्प कर रहे हैं उनको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज गामा। डीएनए पॉलीमरेज गामा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। DNA polymerase has 2 properties. All the DNA polymerases have
two properties, and that is, one is they can synthesize only in one direction, that is 5 prime to 3 prime. As we all know that a new nucleotide can be added at the 3 prime end. So this DNA polymerase can synthesize DNA only in one direction. तो एक ही डायरेक्शन में ये सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो 3 प्राइम एंड है वहीं पर जो है नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट कैन ऐड टू द एग्जिस्टिंग डबल स्ट्रैंड, दैट इज इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, नए सिरे से शुरू नहीं कर सकता है, ये ऑलरेडी जो स्ट्रैंड है उसके 3 एंड पे ही ये न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर सकता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में ये एबिलिटी नहीं है कि वो स्टार्टिंग से कर सकता है, बट आरएनए पॉलीमरेसेस कैन डू दिस। ये काम आरएनए पॉलीमरेज कर सकते हैं जो स्टार्टिंग से न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने का काम कर सकते हैं, बट डीएनए पॉलीमरेज हैज़ लिमिटेशंस। इनमें लिमिटेशंस हैं ये कि एक तो वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, और दूसरा ये है कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है उसी में ही वो अटैच कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट डीएनए हैज़ 2 स्ट्रैंड्स and they both are complementary to each other and anti-parallel to each other. Anti-parallel का मतलब, अगर एक स्ट्रैंड में ऊपर की तरफ 5 प्राइम है तो उसके नीचे की तरफ 3 प्राइम होगा, और उसके बराबर वाला जो स्ट्रैंड है उसके ऑपोजिट, उसमें नीचे 5 होगा तो ऊपर 3 प्राइम एंड होगा। तो जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वी नो दैट इट कैन अटैच एट द 3 प्राइम एंड। One nucleotide can be added at the 3 prime end, और इस प्रक्रिया को करने के लिए इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है जो फॉस्फेट से रिलीज होता है। जो इनकमिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसके बॉन्ड ब्रेक करने से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और कोवलेंट बॉन्ड का बनना किसके बीच में, इन बिटवीन द 3 प्राइम एंड द न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट का जो है इन दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है उससे वो नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है। सो वी नो दैट दे कैन अटैच ओनली एट द 3 प्राइम एंड। इसके अलावा भी पॉलीमरेज एंजाइम्स के कुछ और भी फैक्ट्स हैं, और वो है प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ मिसमैच। मिसमैच का मतलब क्या हुआ, वी नो दैट एडिनाइन के साथ हमेशा थाइमीन पेयर करता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन पेयर करता है। वी नो दैट देयर इज बेस पेयरिंग बिटवीन एडिनाइन एंड थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। बट इन केस एडिनाइन के ऑपोजिट ग्वानिन आकर के अटैच हो गया या साइटोसिन आकर के अटैच हो गया, तो ये पॉलीमरेज एंजाइम पीछे जा कर के उसको रीड करके गलत को हटाएगा और सही को लगाएगा। तो इट चेक्स फॉर द बेस मैचिंग एंड रिमूव्स द मिसमैच्ड बेसेस बाय गोइंग बैकवर्ड्स। सो व्हाट वी सी, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रूफ रीडिंग का भी काम कर सकता है। Now, what is the reason why it is not able to build DNA in the 3 prime to 5 prime direction? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में क्यों नहीं बिल्ड कर सकता वो DNA? Because there is no energy from ATP hydrolysis. जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये ATP का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगा। इसी वजह से जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज व्हेनेवर देयर इज नीड फॉर अ न्यूक्लियोटाइड टू अटैच, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब भी न्यूक्लियोटाइड अटैच करना होता है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो मिलती है एटीपी मॉलिक्यूल से। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे अधिक स्टडी किया गया है।
डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सबसे अधिक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो है बैक्टीरिया से। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बैक्टीरिया से क्यों हुआ है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टू रीजंस, दो कारण हैं। एक तो ये है कि दे हैव स्मॉल साइज ऑफ जीनोम, जो उनका जीनोम का साइज है वो छोटी होती है। दूसरा, उसमें म्यूटेंट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो इन दो रीजंस के वजह से जो है डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से जो है वो बैक्टीरिया में स्टडी हुआ था और सबसे पहले हुआ था। ई कॉली के अंदर 4.6 मिलियन बेस पेयर्स हैं। E. coli has 4.6 million base pairs in a single circular chromosome, and all of it is replicated in approximately 42 minutes. पूरा का पूरा जो 4.6 मिलियन बेस पेयर्स का जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है वो 42 मिनट्स में रेप्लिकेट हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. It starts at the single origin of replication and proceeds around the circle bidirectionally, दोनों डायरेक्शंस में होकर के, और वो डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड हो रहे हैं. तो द प्रोसेस इज़ वेरी रैपिड एंड वेरी फ्यू एरर्स आर अकरिंग. बहुत कम गलतियां होती हैं और काफ़ी फास्ट होता है इसका रेप्लिकेशन. किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर. डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है. इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स बिकॉज जीनोम इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ लार्जर देन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स से ज़्यादा भारी होता है, बड़ा होता है जीनोम इसका. और इसके अंदर जो है, जैसे कि उसके अंदर सिर्फ एक ओरिजिन था रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, इसमें बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं क्योंकि जीनोम भी बड़ा है. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन जीनोम, वी सी दैट देयर आर 3 बिलियन बेस पेयर्स पर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. और अगर वही आप डिप्लॉइड देखेंगे तो कितने होंगे? 6 मिलियन बेस पेयर्स. तो दिस मच ऑफ अमाउंट हैज़ टू बी रेप्लिकेटेड. For this to be replicated, there are multiple origins of replication on each eukaryotic chromosome. जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर जो है मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, एंड दे आर अराउंड 30,000 to 50,000. 30,000 से 50,000 ओरिजिन होते हैं. जबकि आपने बैक्टीरिया में क्या देखा? एक ओरिजिन था जहाँ से वो स्टार्ट हुआ और सर्कुलर मूवमेंट में बाई डायरेक्शनली जो है वो पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो गया था 42 मिनट्स के अंदर. जबकि इसमें क्योंकि बहुत लार्ज होता है जीनोम, 6 बिलियन बेस पेयर्स का होता है, तो 30,000 से 50,000 ओरिजिन्स होते हैं रेप्लिकेशन के. और रेट ऑफ रेप्लिकेशन भी जो है इसके अंदर जो है 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड होता है अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ 10 टाइम्स स्लोअर देन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन. प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से 10 गुना स्लो है इसके अंदर. So we see that there is difference in replication of DNA in prokaryotes as well as the eukaryotes. दोनों में पॉलीमरेस एंजाइम्स भी जो है, जैसे प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेस 1, 2 और 3 है, यूकैरियोट्स में पॉलीमरेस अल्फा, बीटा, डेल्टा. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरह से हाउ द एंजाइम्स आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ DNA replication. Thank you.